Okay, Mayank, let's start your Snap-on signals and system for Bach interview. Can you please introduce yourself? Hello, ma'am. My name is Mayank Jha. I've done my schooling from Delhi Public School. Uh, After that, I went on for my engineering in instrumentation and electronics in Jadavpur University. In the Okay. college, I've prepared for this GATE examination through which I got this call from BARC. If you talk about my hobbies include singing and playing guitar, sports, and Uh-huh. traveling. Okay. Okay, Mayank, can you tell me the difference between Fourier transform and Fourier series? Uh, Fourier series is applicable only for periodic signals, whereas Fourier transform is also applicable for non-periodic systems signals. Sorry. So, so I can't find aperiodic signal in case of Fourier series. No, ma'am. Fourier series only for periodic signals. Even if there is some limitation on the signal, even then I can't find this Fourier series for that signal, aperiodic signal. Uh, Limitation like, ma'am. I'm asking you, कोई limitation अगर signal के ऊपर मैं लगाती हूँ, even then I can't find my Fourier series for aperiodic signal. It's okay. I don't It's think okay. so, ma'am. Okay, tell me about Fourier transform. Fourier transform के केस में periodic signals defined नहीं होंगे. Is that what you're saying? नो मैम, Fourier transform दोनों के लिए ही applicable होंगे. Okay. Aperiodic के लिए भी और periodic के लिए भी. Yes, ma'am. ठीक है. Can you tell me the Fourier transform sin omega t? Fourier transform of sin omega t. Yes. Uh, e, e to the power j. Just calculate it, ma'am. It'll take a minute. Okay. I'm stuck somewhere, ma'am. Sorry. You don't know the Fourier transform sin omega t. What about cos Uh, omega? um, It's okay. uh, First of all, tell me if you have to write sin omega t in the form of exponential series, what will be the formula? uh, okay. I've done a mistake. Sorry. It's e to the power j omega t minus e to the Hmm. power minus j omega t by 2j. By Tuesday, So, right? yes. So, And uh, for, yes, yes. Tell ma'am, now me I'm, what will be the yeah, yes, calculate ma'am. it. Are you getting na? Calculate Yes, what ma'am. will be I've the just Fourier got transform. confused and now it's clear, I think. E to the power j Okay. omega t uh, Fourier transform of this will be 1 by j omega plus 1, sorry, minus 1. क्या होगा? 1 by j omega minus 1 minus 1 by j omega plus 1 or whole divided by 1 by 2j, whole into 1 by 2j. Ma'am. Please show me in your copy what you have written. Uh, yes, I ma'am. didn't get what you're saying. I'll show you, ma'am. I'll show you. Okay, this is what आप ये क्या calculate कर रहे हो in this? Ma'am, Fourier transform of sin omega t. This is not the correct formula. Okay.
Okay, and tell me, what will be the Fourier transform of 1? A constant value है 1, उसका Fourier transform क्या होगा? 2 pi del omega. Done. So now I'm calculating in the time domain e to the power j omega naught t, I'm multiplying with 1. ठीक है? Okay. Now tell me, what will be the Fourier transform? 2 pi del omega minus omega naught, whatever Done. the frequency. Okay. Yes. Now I'm calculating e to the power minus j omega naught t multiply कर रही हूँ. Then क्या होगा? वही मैम 2 pi del omega plus omega naught. ओके, तो आपने पहले मुझे साइन ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या बताया था? दैट वाज e टू द पावर j ओमेगा नॉट t माइनस e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट t. नाउ कैन यू रिलेट क्या होगा साइन ओमेगा Yes. नॉट t का फोरियर ट्रांसफॉर्म? यस मैम, इस बार आ गया मैम। ये आ रहा है पाई बाय जे कॉमन, और उसके बाद अंदर में डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट आ रहा है। ओके, डन डन. So this is the Fourier transform of sin omega t. yes. Okay. So can you tell me about this del omega? ये क्या है? del omega क्या है? डेल ओमेगा एक इसको इम्पल्स फंक्शन बोलते हैं, और ये इस फंक्शन का वैल्यू थ्रू आउट ये 0 रहता है एक्सेप्ट एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, जहाँ पे वो इन्फिनाइट टच करता है, एक इम्पल्स आता है। ओके, तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है. यस And what is the area of that signal? 1. 1. Okay. So is this signal physically realizable? Infinite value का signal है. Is this physically realizable? I think it's physically realizable given that क्योंकि इसका एरिया 1 है, तो ये कंस्ट्रेंट है, तो फिजिकली रियलाइज कर सकते हैं। रियल टाइम में आप एरिया 1 कैसे कैलकुलेट करोगे सिग्नल का? हाउ विल यू अचीव दिस सिग्नल? इन्फिनिटी आपको वैल्यू आ रही है सिग्नल की. हाउ विल इट बी फिजिकली रियलाइजेबल? मैम ऐसे अगर एग्जांपल से देखें तो लाइक इन कैपेसिटर जब चार्ज करते हैं, जब जैसे ही इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें जो करंट फ्लो होता है वो एक इम्पल्स के फॉर्म में ही होता है, तो वो वहां पे फिजिकली वो रियलाइज कर पा रहा है। सडन चेंज तो होता ही नहीं है कैपेसिटर के अंदर. बट अगर विदाउट रेजिस्टेंस अगर हम लोग कैपेसिटेंस में लगाए, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल केस में वायर का रेजिस्टेंस होगा, बट अगर उसको नेग्लेक्ट करे तो ऐसा बट मैं तो प्रैक्टिकल केस की बात कर रही हूँ ना. मैं आइडियल केस की बात ही नहीं कर रही हूँ. I'm only talking about practical case. Then ma'am, it's not realizable. It's not. Okay. So आपने मुझे बताया कि Fourier transform for periodic signal is possible, but sin omega t आप लिख रहे हो and you're calculating the Fourier transform in the form of the signal that is not physically realizable, right? So how is this signal well defined? Periodic signal का तो well defined होगा ही नहीं फिर. मैम फूरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक दोनों पर निकाला जा सकता है, तो वही इस बोल रही केस हूँ, आपने पीरियोडिक का जो निकाला है दैट इज नॉट फिजिकली रियलाइजेबल, दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म. So how is this value true? अच्छा, what is the condition for Fourier transform to converge? डिरिचलेट कंडीशन होता है सर मैम, जिसमें जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसका एरिया फाइनाइट आना चाहिए, तो इस केस में तो वो आ रहा है. ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, इसलिए हम लोग बोल पा रहे हैं कि ये मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म इज करेक्ट. इंटीग्रेबल होना चाहिए. ठीक है, दैट वाज द यस फर्स्ट कंडीशन. तो इंटीग्रेट द सिग्नल कैसे करोगे? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इंटीग्रेट करो साइन ओमेगा टी को. साइन ओमेगा टी को ओवर द होल मैम वो टाइम तो पीरियड इट शुड बी इंटीग्रेबल, राइट? यस मैम. पहली कंडीशन यही है ना कि पूरे टाइम पीरियड पे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इट शुड बी इंटीग्रेबल. So that's what I'm यस saying. Integrate sin omega t from minus infinity to infinity. What will be the value? मैम वो तो बार बार 0 प्लस और माइनस कैंसिल होते जाएगा बार बार इंटीग्रेट करने के बाद, तो उसका Minus वैल्यू कुछ infinity भी से हो सकता है, जो करोगे कि तो भी. वैल्यू
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में उसका वैल्यू कुछ फाइनाइट आएगा, बट वो कह नहीं सकते कि कितना आएगा। फाइनाइट आएगा? हाउ कैन यू क्यों सोचो कि फाइनाइट आएगा? आप इनफाइनाइट वैल्यूज से कैलकुलेट कर रहे हो। मैम, अगर वो इंटीग्रेशन क्या है, एरिया अंडर द कर्व है, तो एक टाइम पीरियड के लिए एरिया अंडर द कर्व तो 0 हो रहा है। तो अगर हम लोग कोई भी टाइम, कोई भी इनफिनाइट टाइम कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग बता नहीं सकते वहाँ साइन का कितना एंगल है, बट वो जो भी होगा उसका एरिया क्योंकि कैंसिल होते जा रहा है, प्लस पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया, तो इंटीग्रेट करने के बाद वो कुछ ना कुछ फाइनाइट एरिया आएगा, ये फिक्स है। जो इन्फिनाइट पे भी होगा फिर भी कुछ आएगा, बट वो क्योंकि इन्फिनाइट एक्चुअल डिफाइंड नहीं है, तो हम लोग बता नहीं सकते वो एरिया फाइनाइट होगा तो होगा कितना। सो दिस वे। अच्छा, फोरियर और क्या कंडीशंस होती हैं फोरियर सीरीज की? एक तो आपने बता दी, और क्या होती है? वो कुछ कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब याद नहीं मेरे को, सॉरी। ओके मयंक, लेट्स कंक्लूड योर इंटरव्यू, ठीक है? यस मैम। सी मयंक, आपको खुद को पता है कि क्या फीडबैक है अभी, राइट? अभी प्रिपेयर करना है सब्जेक्ट, पता है यस ना? मैम। यस मैम। अभी आपने प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया है। मैं कब है आपका इंटरव्यू? मैम 13th को। दिस 13th of June? यस मैम। यस मैम। ओके। सी मयंक, अगर आप ये सब्जेक्ट रखते हो अपना बाकी के इंटरव्यू के लिए, तो नाउ इज द टाइम टू प्रिपेयर थॉरली ऑफ दिस सब्जेक्ट। आपको अच्छे से एक बार सब्जेक्ट की रिवीजन की जरूरत है। ओके लाइक मैम। साइन ओमेगा टी और ये तो आपको टिप्स तो होना चाहिए कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। कंडीशंस, डिरिचलेट कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, है ना? कि क्या क्या यस मैम। कंडीशंस हो रही है कन्वर्ट्स के लिए, कन्वर्जेंस के लिए। ठीक है, थोड़ा सा भी जरूरत है ना? एक दो दिन लगाओ सब्जेक्ट को पूरा। आपने एग्जाम दिया, आपने बात क्लियर किया है यार, आराम से कर लोगे, है ना? आपने पढ़ा यस हुआ मैम। है सब्जेक्ट, वही प्रॉब्लम है कि आपने रिटर्न निकाला है, तो ऑब्वियसली यू नो द सब्जेक्ट, ठीक है, आपको नॉलेज है सब्जेक्ट की। बट क्या है ना, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको नहीं पढ़ा है, यस मैम। राइट? तो अभी अभी क्या करो ना, न्यूमेरिकल पे ध्यान नहीं देना है, कुछ नहीं करना। बस आप हर चीज निकालते हुए थोड़ा दिमाग लगा के निकालनी है। ये नहीं सोचना कि इससे मुझे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सिग्नल्स के अंदर, मोस्टली सिग्नल्स के अंदर क्या आता है, गेट वन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इवन इन बार के एग्जाम न्यूमेरिकल पार्ट इज देयर, मतलब थोड़ा कम होता है बट होता है, ठीक है, आप सिग्नल्स में वहीं पे फोकस करते हो। बट दिस टाइम डोंट फोकस ऑन द न्यूमेरिकल पार्ट, आप चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करो। एंड उस पार्ट को जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पार्ट है वो साइड में रखे, एनालाइजेशन वाले पार्ट को थोड़ा ज्यादा रखो, ठीक है? कि क्यों यस मैम। कैलकुलेट कर रहे हैं फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज से हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के पास क्यों गए, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म लाप्लास क्यों कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी, ठीक है? ये तो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सब कहाँ से मैम पता चलेगा, क्योंकि गेट के प्रिपेयर करते समय ये सब पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था, तो कहीं लिखा मयंक, भी नहीं है। ये तो ये होता है कि आपकी क्यूरियोसिटी है, आप जितना पढ़ते रहो आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा। और इसी के लिए आप स्नैप लगा रहे हो, राइट? कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, इसी के लिए यस स्नैप मैम। है। अगर आपको इश्यू आ रहा है कि आपको नहीं पता चल रहा कि मैं सही डायरेक्शन में सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि नहीं, उसके लिए स्नैप है, उसी के लिए है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। आपको पता चल जाएगा किस डायरेक्शन डायरेक्शन में आपको तैयारी को लेके जाना है अपनी।